depression in children, which is becoming so common today. Number of children that are facing depression has increased. 4 में से 1 बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। Oh, okay. दैट इज वेरी बिग नंबर। या इट एंड इज हमको पता चल रहा है कि बहुत बच्चे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और ये साइंस क्या है कि हम भी अपने बड़ों की तरह मिस्टेक्स नहीं करें। व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन? नहीं आ रही है। हाँ, मतलब आप कहेंगी ये कि सारे सिम्टम। इंसोम्निया, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब आप कह रही हैं या इंसोम्निया मीन्स लाइक नॉट वेरी लैक ऑफ स्लीप या नो स्लीप एट ऑल। बच्चे को हेल्प की जरूरत है, तो हम ऐसे बच्चों को कैसे हेल्प करें जो डिप्रेशन में है? हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प सच चिल्ड्रन? कैसे हेल्प करें हम? मेजर कारण क्या है? वो लोग डिप्रेशन में, जो बच्चे डिप्रेशन हाँ, में ऑलरेडी चले गए हैं, उनको हमें हेल्प करने की जरूरत। कि इनका रूट कॉज क्या है? बहुत फैक्टर्स हो गए हैं आजकल, तो क्या रूट कॉज है बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आना? दैट विल टर्न इन टू A डिप्रेशन। very warm welcome to our session, this parenting session that has today's topic, depression in children, which is becoming so common today that it is one of the most important topics that we are here for. So, a very warm welcome, and I would like to invite our parent coach, life coach Yasmin Jahan, who is here with us today. And Yasmin Jahan, hello everyone. Please stay muted. Please mute yourselves. Yeah. थैंक यू Uh, सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। our pleasure, Yasmin, and ये thank you मेरे so लिए much बहुत for खुशी giving की बात us है। this time. You're so busy and you're doing your coaching online. We see your reels and they are so amazing and they are valuable. And with a tight schedule as a mother yourself, you're so inspiring and so hardworking and so consistent with your work that we wanted you to conduct a session today with us. So a very warm welcome. It's a pleasure to have you. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द बेस्ट, बिकॉज we need, children need our help. Absolutely. I feel that. So जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, मैं जरूर वहां पे हेल्प करना चाहती हूँ। एंड इट इज नॉट द लाइक आई एम डूइंग फॉर माय जॉब, माय वर्क। इट्स my inner feeling that I am here. I feel that feeling for the children, for the mother, for all the person who are in depression. That's true. So that's pleasure for me also. Yeah. It reflects in your in your videos and the way you speak, the way you talk, and the way we've had our conversations. It reflects that your soul wants to help people around, other souls around you, and you're feeling the pain of children today. Number of children that are facing depression has increased, it has hiked, and so we are here to discuss this topic. So, to begin with, Yasmin, we would like you to just highlight that what is depression? Because we are just misunderstanding this term. We just take it like, okay, it's sadness. We just take it as sadness. But of course, it's more One to minute. it. Can you record this? Yeah, this is getting recorded. I'll just check. Yeah, the recording is on. So, are you Okay. also recording Okay. from your end? Can you do that? No, no, it's Okay. not No, showing from it's my recording. side. It is definitely recording. Okay, Yeah. okay. Okay. You continue. Yeah. So, yeah, it's recording. So, uh, so depression, what is depression? We parents or teachers or caregivers, we take it very lightly. We term it as sadness. But what is this Yeah. depression? Could you highlight? Could you just simplify, yet give us a detailed understanding of the word depression? Yeah, you well said very well that it is the term, and it is sadness also. But depression is a mental health that affect their the whole life, daily life.
मीन्स सैडनेस इज अ फीलिंग दैट इमोशन, but sadness, anger, irritation, overwhelm, these all Hmm. are feeling, Hmm. everyone feels. But when sadness, when anger, when irritation, when overwhelming, when loneliness बहुत टाइम तक हमारे साथ रह जाता है, बच्चों के साथ रह जाता है या किसी के भी साथ रह जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। क्योंकि हर परसिस्टेंट कोई रहता है। सैड होता है। हाँ, 3 to 4 वीक कंसिस्टेंटली वो रहेगा, और उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा। हम्म। तो मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ यहाँ पे, कि 4 में से 1 बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। ओ, ओके। दैट इज वेरी बिग नंबर। या इट एंड इज। वी पेरेंट्स आर, या वी पेरेंट्स आर टेकिंग इट वेरी वेरी लाइट, कि बच्चा सैड है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। बट इस पे हमें गौर करने की जरूरत जरूरत है, क्योंकि जो भी एडल्ट होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन के शिकार उस टाइम पे क्यों हुए, उसका बीज जो बोया गया, वो एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 16 वो बीज बो दिया गया है, और कहीं ना कहीं उस उनके एडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। सही बात है। क्योंकि जब बच्चे इमोशनली बहुत वो होते हैं, मजबूत होते हैं, हम्म। तो वो हर एक सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन को अच्छे से वो डील कर सकते हैं। And there are 3 stages. Do you know? I want to explain also. This is very, very श्योर श्योर, important point. प्लीज गो Yeah, अहेड। thank you. There are 3 stages of depression. First is expression. Second, suppression. And third, depression. When a person is not able to express their feeling, their emotions, तो उनकी फीलिंग, उनकी इमोशन कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कैरी करता रहता है। और वो जब सप्रेस करते हैं, वो बहुत टाइम तक जब वो सप्रेस होने लगता है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो कुछ बच्चे ऐसा फील करते हैं कि हेडेक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, स्टोमक एक हो रहा है। इस तरह से वो कहीं ना कहीं पेन फील करते हैं, तो वो कुछ नहीं बल्कि वो इमोशंस हैं जो वो कैरी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन ओके। अमूमन क्या करते हैं लोग, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका सर दर्द का इलाज कराएंगे, पेट दर्द का इलाज कराएंगे, लेकिन हम्म। वो इमोशंस जो कैरी किए हुए हैं वो नहीं समझ पाते। तो यस। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what my child is going through. सो आप ये कह रही हैं कि इट इज अ सीरियस मूड डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर दैट स्टेज परसिस्टेंटली, राइट? बहुत टाइम तक Yeah. वो रहता है। एक नॉर्मल हाँ, सैडनेस, एक फीलिंग होती है कि ओके, बच्चे को कुछ चाहिए था, उसको हमने नहीं दिया तो सैड हो हाँ, गया, हाँ, राइट? सैड हो पर गया। वो अगर नॉर्मल रूटीन में वापस आ गया, नॉर्मल खिलखिलाता हुआ बच्चा फिर से हो गया, तो दैट मीन्स इट वाज जस्ट हम्म। सैडनेस। बट अगर सैडनेस। यही सैडनेस जो कंसिस्टेंटली उसके साथ काफी दिनों तक, हफ्तों तक भी रहती है, एंड उसकी वजह से उसकी फिजिकलिटी पे भी अफेक्ट हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो कि ही इज फेसिंग और शी इज फेसिंग हेडेक्स, एक्सपीरियंसिंग हेडेक्स, स्टमक एक्स, तो इसको बैक हम एक कोई डिप्रेशन कहीं बोलेंगे। ना कहीं वो दिक्कत। ओके। हम्म। तो इसके यास्मीन, आप हमें बताएंगे कि अभी आज इसके सिम्टम्स और क्या हैं? वुड यू जस्ट एलैबोरेट मोर ऑन सिम्टम्स, ताकि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, केयरगिवर्स, जिन्होंने भी अभी ये ज्वाइन किया है सेशन या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कैसे हम समझे कि इस बच्चे को सिर्फ सैडनेस नहीं है, एक फीलिंग नहीं है, दैट चाइल्ड इज एक्चुअली इन हम्म। डिप्रेशन? वो हमें कब समझ में आएगा? क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे टाल देते हैं कि अरे एक फेज है, बच्चा ऐसे ही है, चलो हो जाएगा ठीक, हो जाएगी ठीक। हमने भी सुना होगा बचपन में, काफियों ने। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हम्म। हैव हर्ड दिस व्हेन यू ऑल वर चिल्ड्रन के ठीक है, बच्ची है ठीक हो जाएगी, बच्चा है ठीक हो जाएगा, इट्स अ फेज, इट्स अ फेज करके हम टाल देते थे, या हमारे पेरेंट्स या बड़े टाल देते थे। पर आज के जमाने में हमको पता चल रहा है कि बहुत बच्चे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और ये साइंस क्या है कि हम भी अपने बड़ों की तरह मिस्टेक्स नहीं करें। व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बिकॉज दे कांट be vocal about it. They actually don't understand that they are going through depression. Adults cannot understand. या So, an underdeveloped brain, that's a child, will definitely not understand. So,
आप प्लीज बताइए कि साइंस और सिम्टम्स क्या हैं समझने के लिए दैट अ चाइल्ड इज इन डिप्रेशन। या आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे समझे। हम्म। बच्चे सैड हैं, बच्चे अकेले रह रहे हैं, बच्चे, तो हम कैसे समझेंगे? तो कुछ ऐसे सिम्टम है, जैसे कि बच्चा आइसक्रीम पसंद करता था, लेकिन अचानक से उसे आइसक्रीम पसंद नहीं आ रहा है। हम्म। वो आइसक्रीम खाना ही नहीं चाह रहा है, बिल्कुल देखना ही नहीं चाह रहा है। फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता था, लेकिन अचानक से फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा आता था, लेकिन सडनली वो बच्चा बिल्कुल मार्क्स में कम आ गया, या वो सोशल नहीं हो पा रहा है, अचानक से रोने लग रहा है, उनका स्लीप डिसऑर्डर हो जा रहा है, या तो वो ओके। बहुत ज्यादा सोने लगा, या अच्छा। या वो बहुत कम सो रहा है, उसे रात में नींद नहीं आ रही है। हाँ, मतलब आप कहेंगी कि ये सारे सिम्टम। इंसोम्निया, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब आप कह रही हैं इंसोम्निया मीन्स लाइक नॉट वेरी लैक ऑफ स्लीप या नो स्लीप एट ऑल, एंड या तो ओवर हाँ स्लीपिंग, वो कंटिन्यूअसली सोता जा रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, और वो बच्चा सोशल नहीं हो पाएगा, वो नॉट उसको अकेला सोशलाइजिंग। रहना ज्यादा पसंद आएगा, बहुत जल्दी वो रोने लगेगा, हम्म। थोड़ी थोड़ी बात पे उसे रोना आएगा। तो ये जब दो तरह के फेस होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो हम्म। बहुत क्लिंगी होंगे, बहुत चिपकेंगे, उनको अपने माँ बाप को या अपने जो बहुत ज्यादा करीब लोग हैं उन्हें खोने का डर होने लगता है, तो वो बहुत चिपकने लगते हैं, उनको ऐसा ओके। फील होने लगता है कि मैं खो दूंगा। तो यस। इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन। और आजकल तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया है कि 1 साल के बच्चे में भी डिप्रेशन देखा गया है। यस यस। और और अ, हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो ये साइन है। बड़े बच्चों में क्या होता है कि वो अकेले रहने लगते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं आइसोलेशन, करना, हाँ। थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंट्रम शो करना, एकदम से एंगर इशू होता है उनका। तो ये सारे हम्म। सिम्टम है कि आप अपने बच्चे को आ, वहां पे हेल्प की जरूरत है। बेसिकली माँ बाप को वहां पे बच्चों को हेल्प करने की जरूरत है। सही बात है। कभी कभी ना बच्चा बहुत ही होपलेस भी हो जाता है कि नहीं, मेरे से एंड होगा ही नहीं। हम्म। कुछ हाँ, ऐसे काम होते हैं जो बहुत इजी भी होते हैं, पता चाइल्ड से मुझसे होगा ही नहीं। फिर वो होता है कि उसको फैटीग, आप बोल रही फैटीग होने लगेगा, उनका, बहुत थकान भी होने हम्म, लगेगी, फिर हेडेक्स, स्टमक एकस, फिर और ये भी देखा गया है लोगों का, जो बच्चों का एपेटाइट, उस पे काफी इफेक्ट होने लगता है। आपने रिलेट किया इसको आइसक्रीम के साथ, पर नॉर्मल हाँ, खाना या तो भी। वो बहुत हम्म। ज्यादा खाने लगेगा। हाँ, यस। वो या तो वो बहुत ज्यादा खाने लगता है, या हाँ। बिल्कुल ही खाना नहीं पसंद करता है, देखना नहीं पसंद करता है खाना। हाँ, ये यस। सारे इश्यूज हैं। और कॉग्निटिव इश्यूज कुछ आते हैं, जैसे ब्रेन में कुछ ऐसा, जैसे हम लोग ने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से सुना है कि उनको फोकस में प्रॉब्लम होने लगती है, और कुछ या ऐसा होता उनके है कि उनका फोकस भी कम हो हाँ, जाता है। फोकस कम हो जाता है, मेमोरी पे ऑफ कोर्स हाँ, फिर उनका अफेक्ट करता फोकस है। फोकस कम हो जाता है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा सैड है, कंटिन्यू सैड है, हम्म। तो वो बच्चा कैसे किसी चीज को वो पसंद करेगा, हम्म। कैसे किसी एक चीज पे फोकस करना पसंद करेगा? सही। उसका फोकस ही नहीं जाएगा, और जब फोकस नहीं जाएगा तो उनका स्टडी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। यस। वो अंदर से बच्चा खाली है, हाँ, उनका राइट। इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है, उसको निकलना जरूरी है। या एब्सोल्युटली। तो वेल, डिप्रेशन हम समझे, हम उसके सिम्टम्स और साइंस समझ गए हैं, एंड अब ऑल्सो हमें बताइए कि हम, इस बच्चे को हेल्प की जरूरत है तो हम ऐसे बच्चों को कैसे हेल्प करें जो डिप्रेशन में है। लाइक फर्स्टली तो हमें ये समझना होगा, सो हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प सच चिल्ड्रन, कैसे हेल्प करें हम। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसका मेजर कारण क्या है। हाँ, आप कॉज बताइए पहले। ठीक है, जो जो लोग डिप्रेशन में, जो बच्चे डिप्रेशन हाँ। में ऑलरेडी चले गए हैं, उनको हमें हेल्प करने की जरूरत है। ठीक है, वो हमें बताएंगे हेल्प करना, बट उनका कारण क्या, उनका रूट कॉज क्या, हमें वो समझना बहुत हाँ। हाँ, जरूरी है। वी वांट टू कम टू दैट हाँ डेफिनेटली, कि प्लीज हाँ। एक्सप्लेन कि इनका रूट कॉज क्या है। बहुत फैक्टर्स हो गए हैं आजकल, तो क्या रूट कॉज है बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आना। सो हम्म व्हाट इज इट। तो सबसे बड़ी बात जो है आजकल स्क्रीन है।
हम्म। स्क्रीन से जो डोपामिन मिल रहा है, वो डोपामिन बच्चे इतना ज्यादा ले रहे हैं कि वो उसके अलावा कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो उनका ये धीरे धीरे वो रूट कॉज बन रहा है। ओके। दूसरा, उनका इन्वायरमेंट ऐसा है कि उनको हम्म। सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। या तो माँ बाप अपने में बहुत फाइट कर रहे हैं, ओके। हाँ। ओके। या ब्रोकन फैमिलीज है उनकी, उनकी ब्रोकन ओके। फैमिलीज लाइक है ना। पेरेंट्स आर तो सेपरेटेड। ये हम्म। हाँ, स्टेइंग सेपरेटली, सेपरेट, हाँ, दे आर लिविंग या तो सेपरेटली। डिवोर्स। या हाँ। हाँ, या डिवोर्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ वो किसी के पास रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स हम्म। के पास रह रहे हैं। तो वहां रिलेटिव से भी वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता। नहीं मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट। बिग रीजन। हाँ। एब्सोल्युटली। तो हाँ, ये सारे उनके रूट कॉज हैं। हम्म। प्लस बच्चा जब सैड फील कर रहा है, तो वहां पे माँ बाप को या किसी भी जो उनके गार्जियन है, उनको जरूरत है वहां पे उनके इमोशंस को निकालना उनके वर्ड्स में। अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन्हें वर्ड्स देना कि आर यू हम्म। फीलिंग सैड, आर यू फीलिंग एंग्री, आई एम विथ यू, यू कैन शेयर विथ मी। तो ये सारी चीजें जब बच्चों के साथ हम करते हैं ना, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब उन्हें ये यस। सारे सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं, तो दैट विल टर्न इनटू डिप्रेशन। तो मैंने बताया ना हम्म। कि जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो सप्रेस करते हैं, हम्म। अपने अंदर वो कैरी करते हैं, और जब वो ज्यादा सप्रेस कर देते हैं, तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। डिप्रेशन में बचा, तो इट्स लाइक यू आर सेइंग एक्सप्रेस, सप्रेस, एंड देन दैट्स डिप्रेशन। ओके। डिप्रेशन। सो ESD, तो जो नोट डाउन कर रहे हैं हाँ, वो नोट डाउन कर लें इसको। हाउ टू हेल्प चाइल्ड टू रिलीज द इमोशंस, यस वी आर कमिंग टू दैट। एज शी सेड कि हम इस चीज को वोकेबुलरी दें, कि एक बैंक दे वर्ड्स का, कि आपको स्कैर्ड, आर यू फीलिंग स्कैर्ड, आर यू फीलिंग फियरफुल। क्योंकि ब्रोकन होम्स के बच्चे होते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ नया चेंज आ रहा है, कि न्यू बेबी का अराइवल आ गया, मेजर चेंजेस। हाँ, एनवायरमेंट तो है ही, और एनवायरमेंट अभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट केयर गिवर्स अराउंड है उनके। ओके, मेनी स्ट्रिक्ट पीपल, वेरी लाउड पीपल, उनके सामने बच्चे डर जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। सो ये सब एनवायरमेंट्स उनको अफेक्ट करते हैं। फिर कुछ पियर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं, उनके सामने भी वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको बुरा फील हो रहा है। तो वी हैव टू हेल्प चिल्ड्रन by giving them words to help them express what they are feeling. So ये एक बात हो गई। And what other things to release their emotions? One question has popped up here. So how will they release their हाँ, emotions? अगर आप हेल्प कर सकें यास्मीन जान इन इन इस क्वेश्चन पे, हाँ, मैं और एक दो कैसे? पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब माँ बाप या पेरेंट्स को ऐसा फील हो कि हम्म। बच्चे को ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं, या हम्म। नहीं भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब भी बच्चा फील कर रहा है ऐसा, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, उन्हें ओपन कम्युनिकेशन करना है ओपन उनके साथ। कम्युनिकेशन, परफेक्ट, यस। हाँ, कि उनसे ऐसा सवाल करना है कि वो अपने सारे इमोशंस वो अपना रिलीज कर दे, अपना बता दे। प्लस उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ सुनना है, जज नहीं करना है, उन्हें जज नहीं बिल्कुल भी करना है। नहीं जज करना है, बिल्कुल भी उन्हें इंटरप्ट नहीं करना है, भले ही वो गलत बात बोले। और हम्म। पसंद नहीं करते हैं। हम्म। तो जब भी हम, एम ए ऑडिबल? यस, यू ऑडिबल। ओके, थैंक यू। सो जब भी हम बच्चे टीनेजर्स के पास जाएं, या किसी भी बच्चे के पास, तो स्पेशली टीनेजर्स जो है लेक्चर पसंद नहीं करते, तो जब वो अपनी बातें शेयर करते हैं ना, तो हमें वहां इंटरप्ट करने के बजाय हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे हम लोग सुनते हैं ना, वैसे हमें सुनना है। हम्म। जी और बिल्कुल। उसमें से अगर आपको दो दो तीन पॉइंट्स पेरेंट्स को लगे कि मुझे यहाँ पे गाइड हाँ। करना है, तो वो एक दो दिन बाद वो रुक करके गाइड कर सकते हैं। हम्म। डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं। और हर दिन बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट करके, हर दिन कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट्स का कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, फॉर एब्सोल्युटली। एवरी पेरेंट। इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट, इवन कोई भी माँ बाप हो, उनको उनको अपने बच्चे के साथ 15 to 20 मिनट्स का कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, Necessary, नॉट एन absolutely. ऑप्शन। So I hope you all are noting down and have noted down all this. We'll also put it in our groups, and these points will definitely help you. And if they've helped you, you all should
message us or write it in the group. So it will also help us be motivated to conduct more such sessions. We are not keeping the sessions very long. So I would also like to now come. Thank you, Yasmin, for guiding us so much. We would like to know the causes. Causes तो आपने बताया, environment and stuff. आप मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ट्रीटमेंट्स, व्हेन शुड वी नो, पेरेंट्स शुड नो दैट अब मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपने अभी हमें थोड़े हेल्प गाइडेंसेस बताए, जैसे SLLR जो आप बता रहे हैं, एंड एज कोचेस वी नो दैट कि फर्स्ट स्टॉप, अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है, लुक, हाँ। लुक। लिसन, एंड देन वी रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड, देन वी रिस्पॉन्ड हाँ। इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज जस्ट लिसन विदाउट जजमेंट। हम्म। और और टेक्निक्स होंगी कि आप उन्हें मेडिटेशन करवाएं, चाहे प्रेयर के थ्रू, हम्म। फिर आप थोड़े एक्सरसाइजेस या स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करवाएं, और फिर हम्म। इसके अलावा क्या करना चाहिए, यास्मीन, इफ यू कुड जस्ट लेट अस नो इन 5 minutes, हाँ, सिंस इसके टाइम अलावा अगर कनेक्शन पार्ट, सबसे पहले जरूरी है कनेक्शन कनेक्शन। पार्ट बनाना अपने बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं अगर उनके साथ हम वॉक करें। टीनेजर्स आजकल के जो हैं वो ज्यादा स्क्रीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं आफ्टर हम्म। ये कोरोना, कोविड के बाद से बच्चे हम्म। और भी ज्यादा स्क्रीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो बच्चे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम्म। हम अपने बच्चों के साथ ऐसे ऑर्डर ना देने के बजाय हम अपने बच्चों के साथ ऐसे बोल बोल सकते हैं कि आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प, एब्सोल्युटली, हाँ। हाँ। बिल्कुल। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई नीड योर हेल्प, हाँ, कैन यू ये हेल्प मी फॉर 10 मिनट्स। सही। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम अपने टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन और कनेक्शन बना सकते हैं। और जब भी ये बच्चे अकेले होते हैं कुछ ना कुछ अपने दिल की बात शेयर करते ही हैं, अगर हम बिना जज किए उन्हें सुने। बिल्कुल। क्योंकि भले ही वो ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत है, बट दे नीड योर हक, दे नीड यू। एब्सोल्युटली, दे उन्हें नीड ऐसा, यू। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो आपकी जरूरत महसूस करते हैं, आपके हक की, आपके टच की, आपके केयर की उन्हें जरूरत होती है। एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट इज कनेक्शन। और मैं एक दो टेक्निक और बताना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी। Yeah, तो we have अगर five बच्चे minutes हमें with ऐसे, us. That's all. Yeah. Only the meeting time is the ओके। limit. So otherwise, we would have continued. We can also continue later with one more session. Definitely, we'll elaborate. And हाँ ओके। जी, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए कि ओके। डॉक्टर्स के हाँ, पास जल्दी में जाना मैं, चाहिए हमें। या। हाँ हाँ, उन्हें डॉक्टर के पास, अगर ज्यादा उन्हें साइन लग रहा है तो डॉक्टर से हेल्प लेना चाहिए। एंड सबसे पहले पेरेंट्स को इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए और जर्नल करना सिखाना चाहिए बच्चों को। यस। जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जर्नलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे हर चीज परफेक्ट लिखें। हम्म। जर्नलिंग का मतलब है इमोशंस को एक सेफ स्पेस देना, बस। उनके एब्सोल्युटली। इमोशंस सेफ स्पेस पे चले गए, वो लिख गए, इसका मतलब उनका इमोशंस रिलीज हो गया। दूसरा, ग्रेटिट्यूड सिखाना बच्चों को, शुक्राना। शुक्राना। ये बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड हम्म। सिखाना, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं। लाइक कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो कम हो जाता है जब बच्चे दैट्स अ ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस करना हार्मोन, शुरू हाँ। करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन है वो हम्म। वो रिलीज होना कम हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन वो ज्यादा रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन। तो वो हम्म। ज्यादा रिलीज होने लगता है। तो यहाँ मैंने दो तीन टेक्निक बताई, इसको अगर कोई भी पेरेंट्स करे ना, तो कोई एक को उठाए तो वो जरूर वर्क करेगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन डू। उस वक्त में बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो फर्स्ट वी नीड कनेक्शन, देन आफ्टर वी कैन गाइड की आप ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो। यू कैन हम्म। ऑल्सो, वी कैन गिव देम ऑप्शन कि आप जर्नल भी कर सकते हो। तो स्लोली एब्सोल्युटली। एंड ग्रेजुअली चिल्ड्रन विल ऑल्सो चेंज। एंड ऑल्सो चेंज फ्रॉम द नॉर्मल एनवायरनमेंट, जैसे अगर वो कंटिन्यूसली यस। स्कूल जा रहे हैं या कहीं कुछ, तो उनको एक ब्रेक चाहिए, उनको चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए, वो भी उनकी पसंद के हिसाब से। एंड पेरेंट्स के लिए हाँ। ये भी, जैसे मैंने मेंशन किया, SLLR को फॉलो करें, स्टॉप, खुद में भी ये चेंज लाए कि स्टॉप, लुक, लिसन, एंड देन रिस्पॉन्ड। ये हमारे अंदर भी चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं। So, thank you so much. Deep, deep gratitude to you, Yasmin, for being here and giving us such beautiful insights about parenting on the topic that's a hot topic of today, that is depression in children. And definitely with your guidance and with all the understanding that you shared with us,
we will be able to help our children and people who need help. And inshallah, we'll definitely meet again for another session with you, and Yeah, that'll be inshallah. soon. Thanks. And it's my Thank you for pleasure. joining. No, no, it was I'm lovely very having you. happy. Yeah, we also very honored to have you. And I hope you all liked this session. Is there anything that you would like to ask? Well, we have very And less one more time, but thing, still. if there is Yeah, time, 1 minute only. One more thing I want to share. mm, Children don't need perfect parent. absolutely. Yes. They need your presence only. They need you. Connection, mm, presence, connection, अगर and कुछ आपको इस सेशन से लेके जाना है तो एक चीज लेके जाइए. You are a good parent. Children don't need perfect parent. absolutely. I बिना agree जज totally. किए बच्चे को अगर हम सुनते हैं ना, that's enough. कुछ नहीं चाहिए बच्चे को. Thank you Bilkul. so much for coming here, attending this session. Yeah, it's our And it's pleasure. my pleasure to Please, be with you, Insha. And yeah, you are same here. also doing very great. And Thank you so much. And very yeah, kind of the people who have joined us. And I would also like you all to follow us on our Instagram pages. That is, mine is life coach underscore Insha. And Yasmin's is Yasmin. Could you tell your Insta handle? That parenting with is Yasmin. parenting I want to underscore type with here. underscore Yeah, Yasmin. parenting underscore with With underscore Yasmin. Yes. And mine is life. It is life coach. Yeah. Underscore Insha. Let's type in here. All right. So आप लोग प्लीज हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे एंड डेफिनेटली कनेक्ट विद अस फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एंड keep attending such sessions. It is good for you and it is good for your children too. And also let people know about these sessions. So thank you. या इट्स बेनिफिशियल ना कि लोग Yeah. और भी लोग ज्वाइन करें तो उन्हें बेनिफिशियल होगा. यू कैन ऑल्सो इनवाइट योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, एंड वी Mm. विल कीप डूइंग इंशाल्लाह. Inshallah. So we are here. Your intention is to help everybody, and definitely with this, we would like to end the session at a beautiful note. Please share with us what you learned on WhatsApp groups that you all are in, and do follow us on इंस्टा Instagram. ऑल्सो, Yeah, Facebook, YouTube, everywhere. You yeah, can yeah. follow, you can share your Absolutely. experience wherever you want.